Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start with the next chapter, that is morphology of flowering plants. When we call morphology, जब हम morphology की बात कहते हैं तो we are talking about the external structure of the plant body. As you know, there are two parts of the plant body. Number one is underground part. Number next is the above the ground part, that is called the aerial part. Firstly, we will discuss the underground part of the plant, that is root. On the basis of origin, the roots are of two types. Number one, ओरिजिन की बुनियाद पर रूट्स के दो टाइप्स होते हैं. एक जो रेडिकल से अराइज होता है उसको कहेंगे टैप रूट. दैट अराइजेज फ्रॉम द रेडिकल, उसको कहेंगे टैप रूट. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट्स का, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स का. और दूसरा है दैट इज कॉल्ड एडवेंचरस रूट, दैट अराइजेज फ्रॉम anywhere other than the radical, that is called the adventitious root. This tap root is persistent. Tap root जो होता है that is persistent, and जो adventitious root वो होता है it is the characteristic feature as it arises from anywhere other than the radical. So ये characteristic feature है monocots का, monocots का. We will proceed on further. As you know, the embryo of angiosperms is bipolar, that is root apices and shoot apices lie on opposite sides of the embryonic axis. As we are discussing the tap root, as it originates from the radical, it is persistent. It grows downwards into the soil. It develops lateral branches of several orders: primary, secondary, tertiary. These grow in an acropetal order, that is older towards the base and the younger towards the apex, that is called an acropetal order. Younger towards the apex and older towards base, it is called an acropetal order. The primary root along with all the lateral branches form a system that is called taproot system. Taproot system किसे कहते हैं? Primary root along with all the lateral branches. अब टैप रूट सिस्टम में जो पहले कहा, जो टैप रूट होता है वो ओरिजिनेट होता है रेडिकल से. और टैप रूट सिस्टम किसे कहते हैं? द प्राइमरी रूट अलॉन्ग विद ऑल द लेटरल ब्रांचेस, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, फॉर्म ए सिस्टम that is called tap root system. That is called tap root system. All the branches, मैंने पहले भी कहा, जो branches होते हैं वो arise होते हैं in an acropetal order. उसका मतलब ये है कि older towards the base and younger towards the apex. The ultimate branches are called rootlets or root hairs, which absorb water from the soil. As you know, a root is typically non-green, underground, descending part of the plant. It does not bear nodes and internodes. रूट्स में नोड इंटरनोड नहीं होता, जैसा कि सिस्टम में हम देखते हैं कि नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. तो रूट्स में ये डिफरेंशिएट करता है इसको. रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते. और एक फर्क है रूट्स और सिस्टम में. और दूसरी फर्क क्या है? द लेटरल ब्रांचेस दे ग्रो they are endogenous in nature. वो क्या होती है? endogenous in nature. वो arise होती है from the pericycle. in case of stem क्या होता है? वो exogenous in nature होते हैं, वो pericycle से originate नहीं होती हैं. इस तरह हमने ये टैप रूट सिस्टम क्या पढ़ा? टैप रूट सिस्टम अब जाना आपने कि वो रेडिकल से arise होता है और ये persistent होता है. ये downwards, ये lateral roots develop करता है. जो lateral roots, primary root along with the lateral root, they form a system that is called tap root system.
इसके बाद जो दूसरा है उसको कहते हैं एडवेंचरस रूट्स दैट अराइज फ्रॉम एनी अदर पॉट या anywhere except radical, that is called adventitious route, that is all called adventitious route. Now we will discuss various parts of the top और जिसको कहेंगे regions of the route. पहला रीजन हम देखते हैं जो अंडरग्राउंड पर होता है रूट टिप। रूट टिप से शुरू करेंगे। रूट टिप पहला चीज जो है इट हैज अ we will start with the root tip. It is protected by a cap called root cap. We will start पहले हम इसके जो रीजन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रूट टिप। टर्मिनल पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे तो जो टर्मिनल पार्ट है उसको कहेंगे रूट टिप और ये प्रोटेक्ट किया जाता है पैरेन्काइमाटस सेल से, उसको कहेंगे रूट कैप। रूट कैप जो रूट कैप इट going जो as the root continuously grows into the soil due to friction of the earth with the hard soil particles, वहाँ होता है cells loss होते हैं, downwards cells get damaged और new cells are being replaced by the growth जो नई चूँकि इसके बाद उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो न्यू सेल्स इसके बाद रिप्लेस होती है। तो ये कंचू मैंने कहा जो रूट कैप होती है वो परसिस्टेंट होती है। न्यू रूट कैप इज फॉर्म्ड। द सेल्स ऑफ द रूट कैप सिक्रीट म्यूसिलेज, जो रूट कैप की जो सेल्स होते हैं वो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं विच हेल्प द टेंडर रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जो इन रूट टिप्स को या रूट्स को हेल्प करती है डीप पेनिट्रेट करने के लिए होने के लिए इस सॉइल में। एरियल रूट्स जो होते हैं वो जो एरियल रूट्स जो नॉर्मली some roots are aerial, some roots are also we will discuss in the modification of that chapter in that topic in the modification of the roots. In case of hydrophytes root cap is not present, रूट कैप वहाँ पर नहीं होती हैं दे और यहाँ जो होते हैं रूट कैप रिप्लेस होती है। इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स वहाँ चूँकि उसको वास्ता नहीं पड़ता है क्योंकि वो पानी में होती है इसलिए उसको हार्ड सॉइल जो नहीं होती है बिल्कुल से वहाँ रूट कैप्स नहीं होते हैं, उनको कहेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स रूट पॉकेट्स। दे आर पैरेन्काइमाटिक सेल्स और इसमें रूट हेयर्स भी जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स भी नहीं होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं तो उनको कहेंगे हाइड्रोएक्वाटिक प्लांट्स। दे डू नॉट हैव रूट कैप्स, उनमें रूट कैप्स नहीं होती है और उनको रूट हेयर्स नहीं होते। रूट कैप्स के इसके बजाय उनको होते हैं रूट पॉकेट्स और उनमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं और वो दोबारा नहीं दे डू नॉट रीजनरेट, वो दोबारा नहीं आते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इसके बाद रूट कैप पे बाद दूसरा रीजन है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। पहला जोन है रूट कैप, नंबर 1 पहला रीजन है वो रूट कैप है। रूट कैप के बाद दूसरा रीजन है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। ये बिल्कुल स्मॉल होता है अबाउट 1 mm लेंथ और मेरिस्टेमेटिक इट इज सिचुएटेड in the subapical region just behind the root cap. It is situated in the subapical region just root cap के बाद इसके बाद ही situate होती है, present होती है। The meristematic cells have these meristematic cells have power of division। ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, पावर ऑफ डिवीजन। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स सेल हैज अ वैक्यूल, मगर इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है मगर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स add cells towards the main root and towards the root cap.
these meristematic cells add cells towards the main root and towards the root cap. इस तरह जो मेरिस्टेमेटिक सेल याद रखा हमने, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो इन द सब एपिकल रीजन में होते हैं, जस्ट बिहाइंड द रूट, रूट कैप के बाद ही होता है, और इन सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन होता है। दूसरी चीज़ जो फ़र्क है आम सेल से, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें ओनली न्यूक्लियस होता है, और ये ऐड करता है सेल्स टुवर्ड्स द रूट कैप और आल्सो टुवर्ड्स द मेन रूट। नंबर दूसरा हिस्सा जो उसको है उसको कहते हैं जोन ऑफ एलॉगेशन, जोन ऑफ एलॉगेशन, एलॉगेशन। जो दिस जोन इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड, इसके बाद जो हिस्सा होता है वो जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके बाद होता है जोन ऑफ एलॉगेशन। दिस जोन it has lost power of division, इसमें एलॉगेट होता है, किस तरह होता है, इसमें वैक्यूल जो होता है वो एलॉगेट होता है, तो इसमें जोन ऑफ एलॉगेट इज ओनली कंसर्न्ड with the absorption of water and minerals. The cells are vacuolated and start differentiation. इसके बाद तीसरी चीज जो है इसको कहते हैं रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन। हम देखते हैं कि कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रोड्यूस आउटग्रोथ्स प्रोड्यूस करते हैं, रूट हेयर जोन कुछ एपिडर्मल सेल्स आउटग्रोथ्स प्रोड्यूस करते हैं। Those are called root hairs. They help in absorption of water from the soil. These root hairs, वो क्या उनका काम क्या है, वो absorption of water from the soil हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में। तो these cells internally these root hairs, रूट हेयर जोन जो होता है ये डिफरेंशिएशन शो करता है, ये डिफरेंस की सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन डिफरेंशिएट इनटू या डिफरेंशिएट टू फॉर्म जाइलम बनाते हैं। जो अंदर वाली सेल्स रूट हेयर जोन की हैं वो जाइलम बनाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मस, इसके बाद कोटेक्स, इस तरह बनाते हैं ये, एंड इसके बाद एपिबेलिमा। ये मेन रीजन ऑफ द रूट है, ये मेन रीजन अब हमने देखा जो रूट है वो इसके दो टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है अंडरग्राउंड पार्ट जो रूट का, इसको कहते हैं ट्रू रूट, वो अराइज कहाँ होता है, रेडिकल से अराइज होता है। और ये डाइकोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, डाइकोट्स का। और दूसरा पार्ट है वो है एडवेंचरस रूट्स, वो अराइज एनीवेयर अदर देन द रेडिकल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। इस तरह हमने पढ़ा पहले ट्रू रूट क्या हो गया, एडवेंचरस रूट का, इसके बाद आता है टैप रूट। टैप रूट को मैंने पहले भी कहा, जो टैप रूट्स होते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल, वो रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं वो, और इट इज परसिस्टेंट। जो एडवेंचरस रूट्स हैं वो परसिस्टेंट नहीं होते हैं, जबकि टैप रूट्स बिल्कुल परसिस्टेंट होते हैं। और जो टैप रूट क्या होता है, ये डेवलप करता है सेवरल लेटरल ब्रांचेस, दे आर ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। दिस प्राइमरी रूट along with all the other lateral branches form a system that is called taproot system. इसके बाद हमने लिया रूट के रीजन। रूट पहला रीजन मैंने कहा रूट टिप, जो रूट टिप होता है एक प्रोटेक्ट होता है एक कैप के जरिए, एक शॉर्ट होता है रूट, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वो कैप पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। यह रूट चूँकि कंटिन्यूसली ग्रो करता है किसमें, सॉइल में, इट सेल्स गेट डैमेज्ड and these new cells are being replaced, और नया बन जाता है रूट कैप, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसके बाद द सेल्स ऑफ ये रूट कैप की जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करती हैं एक मिसलेज, जिससे विच हेल्प दीज टेंडर रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसके बाद जो
हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होते हैं, उनमें रूट पॉकेट्स होते हैं, उनमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं, उनमें चूँकि उनको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करने, डायरेक्ट इन कंटैक्ट ऑफ वाटर होते हैं, इससे ये फ़र्क है हाइड्रोफाइट्स और जिसमें जो और एक चीज़ है जिसमें स्टिल्ट रूट्स पेंडनस सेटल्ड रूट, उस पर बैडी रूट कैप्स होती है, उसमें क्या होती है, बहुत से रूट कैप्स होते हैं। आम तौर पर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं रूट टिप को एक ही रूट कैप होती है। इस तरह हमने ये पहले पढ़ा मॉर्फोलॉजी, इसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ रूट्स और इसके बाद वेरियस रीजन्स ऑफ द रूट्स। दिस विल डू फॉर द डे।